अबाउट ऑल थिंग्स তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকের এই ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করব আলী ইউনিভার্সিটির এন্ট্রান্স এক্সাম সম্পর্কে। কবে থেকে এক্সাম হতে চলেছে, কি কি করবে, কোন বিষয়গুলো পড়বে, কোনগুলো ছেড়ে দেবে, কতটুকু পড়বে, কতটা টাইম রয়েছে এক্সাম হওয়ার জন্য, এবং সবকিছু ডিসকাস করব আজকের এই ভিডিওতে, কাট অফ থেকে শুরু করে প্রতিটা সাবজেক্টের জন্য। ঠিক আছে, আমি ট্রাই করব সবগুলো, এবং ভিডিওটা বেঙ্গলি হিন্দি দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে হবে। প্রথমত আমি বেঙ্গলিতে বলবো, কারণ অনেকে বেঙ্গলি বুঝতে পারছে বাট অনেকে হিন্দি বুঝতে পারছে, বাট অনেকে ভাবছে কি যে প্রথমত বেঙ্গলিটা হলে ভালো হয়। সবারই কথা মাথায় রেখে আমি বেঙ্গলিতে স্টার্ট করছি। অ্যাট দ্য এন্ডে গিয়ে বা যখন মনে হবে যে इंग्लिशে হিন্দিতে বলা হচ্ছে, আমি পুরোটা হিন্দিতে বলবো। नो चाप बिंदास बस, ओके, जस्ट लिसन केयरफुली। ओके, मैं हिंदी में भी लास्ट में बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं की, कोई बात नहीं। किसी को समझ नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, मैं सबके बारे में सोच के वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट होने वाला है, वो मतलब बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं तुम लोग को बता देता हूँ। देखो एक्चुअली यहाँ पे शो कर रहा है कि देखो इधर जो ऑप्शन है ना, इधर जो ऑप्शन है एडमिशन एयूएटी 2023, मतलब ये जो वाला ऑप्शन है ये एडमिशन एयूएटी 2023 का। तो ये फॉर्म फिलअप जब स्टार्ट हो जाएगा तो इधर शो करेगा। ठीक है ना, तो टेंशन मत लो भाई, बिंदास। ओके, तो एयूएटी 2023 নোটিফিকেশন উইল বি কামিং সুন। দেখো এখানে কিন্তু এখনো ফর্ম ফিলআপের জন্য যে নোটিফিকেশনটা আসা দরকার সেটা কিন্তু এখনো স্টার্ট হয়নি বা আসেনি, বাট কবে আসবে সেটা তোমাদের মধ্যে অনেক ডাউট রয়েছে। তো সেই ডাউটটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমি। সো নো চাপ, জাস্ট তোমাদেরকে আমি লিখে বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমি এটা উপরে নিয়ে নিই, ওকে, দেন সুবিধা হবে। মাই গড, দেখো তোমাদেরকে আমি পুরো ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, বেসিক্যালি তোমাদের যে ফর্ম ফিলআপটা হবে, ওকে, তোমাদের যে ফর্ম ফিলআপটা হবে, দেখো আমাদের ইউএটির 2023 যে ফর্ম ফিলআপ হবে সকলের জন্য, ফর ইচ এন্ড এভরি সিঙ্গেল পারসন, এটা মে মাসের 8 তারিখ থেকে স্টার্ট হতে চলেছে। ঠিক আছে, এটা কিভাবে জানতে পারলাম, আমি গিয়েছিলাম কলেজে, তো কলেজে গিয়ে দেখলাম যে স্যারের সঙ্গে কলেজ না অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্সিটি গিয়েছিলাম, কথা বললাম, স্যার বল অলরেডি কাজ চলছে এই ব্যাপারে, অলরেডি মিটিংও হয়েছে যে কবে থেকে স্টার্ট করা যাবে। তো তোমরা 7 তারিখ 7/5/2023 তোমরা দেখতে পাবে ওখানে যে প্রসপেক্টাস থাকে, প্রসপেক্টাস, তো সেটা কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে। ঠিক আছে, সেটা তোমাদের কিন্তু ওয়েবসাইটে, ওই যে ওয়েবসাইটটা তোমাদেরকে দেখালাম সেটা ওয়েবসাইটে কিন্তু আপলোড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওইটা 8 তারিখের আগে আপলোড হয়ে যাবে। এবং দেখো ফর্ম ফিলআপে গিয়ে অনেকে কিন্তু প্রবলেম ক্রিয়েট করে, তো সেই প্রবলেমগুলো আমরা কিন্তু করবো না। প্রথমে যখন 8 তারিখে ফর্ম ফিলআপটা বেরোবে, 8 তারিখে যখন ফর্ম ফিলআপটা বেরোবে তোমাদের কাজ কি সেটা শুনে নাও। ঠিক আছে, ফর্ম ফিলআপ বেরোনোর পরে আমরা জাস্ট স্টার্ট করব, দেখবো, জাস্ট ওয়েট করব। ওকে, অ্যান্ড দেন কিন্তু পরবর্তীতে আমি জানিয়ে দেবো যে তোমাদেরকে কখন কি করতে হবে। ঠিক আছে, যখন তখন নয়, জাস্ট একটা ওয়েট করবে, এবং আমি একটা পার্টিকুলার ডেটে আমি তোমাদেরকে যখন ভিডিও পোস্ট করে দেবো, ওকে, সো যখন ভিডিও আসবে দেন কিন্তু তোমরা ফর্ম ফিলআপটা স্টার্ট করবে। ঠিক আছে, ফর্ম ফিলআপটা তখন স্টার্ট করবে, এবং এর জন্য কিন্তু আমি পার্টিকুলারলি একটা তোমাদেরকে টিউটোরিয়াল ভিডিও আমি কিন্তু অলরেডি তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। সো তারপরে কিন্তু ফর্ম ফিলআপটা করবে। যদি কেউ ফর্ম ফিলআপে ভুল করে ফেলো, তাহলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে। তো সেই ভুলটা তোমরা কিন্তু করবে না। অবশ্যই তোমাদেরকে আমি বারবার করে বলছি, ফর্ম ফিলআপে ভুলটা করবে না। আমি যখন ভিডিও পোস্ট করব আফটার পাবলিশিং ভিডিও, দেন তোমরা কিন্তু ফর্ম ফিলআপের দিকে যাবে, তার আগে কিন্তু ফর্ম ফিলআপ করবে না। ঠিক আছে, ফার্স্ট। থার্ড কি, দেখো যখন তোমাদেরকে 7 তারিখ রাত্রিবেলাতে 7/5/2023 তোমাদেরকে যখন প্রসপেক্টটা দেওয়া হবে, অনেকের ডাউট রয়েছে যে আমি এলিজিবল কিনা, তো সেই ব্যাপারে কিন্তু তোমরা কিন্তু সকলেই জানতে পারবে। ঠিক আছে, সো জাস্ট ওয়েট করো আর কিছুটা দিন, 8 থেকে 10 दिन, তবে কিন্তু জানতে পারবে। এবার দেখো তোমাদের মধ্যে প্রশ্ন হচ্ছে, দাদা সব তো জানতে পারলাম, এবার পড়বো কিভাবে, तो इस बारे में बताइए। तो अभी देखो मैं हिंदी में बताऊँ रहेगा, मतलब अभी देखो यूएटी 8 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए तुम लोग फॉर्म फिलअप एकदम रात में ही करने मतलब जाना मत। ठीक है, 15 दिन से ऊपर रहता है डेट, तो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बाद ही तुम लोग फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो मेरे को बाद में बताना मत। ठीक है, अभी देखो, अभी एक काम करना है तुम लोग को। ठीक है, जैसे कि देखो फॉर्म फिलअप करने से पहले
मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ बता देता हूँ, उसको सुन लो कि कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो पढ़ने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है हम लोग को, मतलब मीडियम ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखो ये है बीएससी नर्सिंग का, ये है बीएससी नर्सिंग का। तो बीएससी नर्सिंग में क्या रहता है एक्चुअल में, जो जंपा होता है ना, जनपा, ओके आई थिंक जनपा होता है, राइट, जनपा। कुछ गलत लिख दिया तो मेरे को माफ कर देना यार। तो जनपा में जितना भी सिलेबस रहते हैं सेम सिलेबस आल यूनिवर्सिटी में, एयूटी 2023 में भी सेम सिलेबस ही रहता है, अलग कुछ नहीं रहता, ठीक है। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या रहता है, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अभी देखो कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कितना रहेगा। 100 मार्क्स का देखो इधर क्या रहता है कि 100 मार्क्स रहता है, कितना रहता है 100 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स की तुमको करना पड़ेगा, 2 घंटा रहता है। और नेगेटिव मार्क भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है, ठीक है। सो नेगेटिव कितना रहता है वो भी देख लो, इधर इधर सब कुछ लिखा हुआ है। देखो इधर की मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव के लिए मतलब -0.25, मान के चलो कि तुमने 4 गलत कर लिया, 4 गलत हो गया, दैट मीन्स तुमको कितना मार्क्स जाएगा, मतलब हर एक के लिए -0.25, तो पूरा 4 के लिए कितना जाएगा, -1 चला जाएगा। 4 गलती से तुमको 4 गलती से 1 नंबर जाएगा, ठीक है। तो देखो मान के चलो कि चारों में करीब तुम्हारा 1 सही हो गया, ठीक है, तो 3 गलत हो गया, तब तो 0.75 गलत होगा, लेकिन 1 से जाएगा, फिर भी तुमको 0.25 मिलेगा, 0.25 तुमको मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए जो क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि ये आई थिंक आंसर हो सकते हैं उसको कर दो, ऐसा छोड़ के मत आओ, ठीक है, कर दो। मतलब नेगेटिव बहुत कम है सर, मतलब 1/4 है, तो चारों में 1 नंबर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जिसको लगता है कि भाई ये ऐसा आंसर हो सकता है उसको छोड़ना मत, करके आना, ठीक है ना। अभी देखो ये जो सेक्शन है फिजिक्स सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री एरकम থাকে, ঠিক আছে। सो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऐसा रहता है, सॉरी मैथमेटिक्स नहीं रहता है, बायोलॉजी रहता है। तो इसमें देखो जो जो क्वेश्चन है बोर मॉडल से पूछा गया है, ठीक है। और ये लाइक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन आएगा। अभी तुम लोग को काम है कि देखो, मतलब मैं हर क्वेश्चन तो ऐसे पढ़ के नहीं समझा पाऊंगा ना, थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ कि कैसे कहाँ पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो सब मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये जो है ना, मतलब ये बेसिक है, लाइक अभी क्या करना है, ज्यादा बहुत पढ़ने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैं फिजिक्स के लिए कुछ बता देता हूँ, वो कर लेना तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। फिजिक्स को देखो, फिजिक्स खत्म हो गया, तो इसमें देखो फिजिक्स में के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिजिक्स है, ठीक है, तो फिजिक्स के लिए क्या करना है, अभी देखो इसके हम इधर आ जाता हूँ तो सही रहेगा। देखो फिजिक्स के लिए क्या करना है, देखो जब तुम फिजिक्स के लिए पढ़ना चाहोगे, ठीक है, तो मतलब फिजिक्स के लिए पढ़ना चाहोगे, ये जस्ट मैं बीएससी नर्सिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, उसके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी बोलूंगा, ठीक है। देखो फिजिक्स के लिए क्या करना है, अभी फिजिक्स का जो क्लास 12 का बुक है, हो सकता है कि तुम WBBSC बोर्ड से हो, सॉरी WBCHSC बोर्ड से, CHSC बोर्ड से हो, ओके, मतलब बेंगोली बोर्ड, बेंगोली ऐसे हो सकता है। और नहीं तो तुम CBSE बोर्ड से भी हो सकते हो, CBSE इससे भी हो सकते हो। तो मतलब इसका क्या करना है, जस्ट तुमको CBSE बोर्ड का हर एक चैप्टर का एंड में क्या होता है, पूरा चैप्टर के बारे में मतलब लिखा रहता है, एंड में कुछ लिखा रहता है, वो चैप्टर के बारे में वो पेज को अच्छी तरह से पढ़ना है, एकदम 100% पढ़ना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो तुमको पहले से पता हुआ है, ठीक है। अभी तो हर एक पेज को पढ़ने जाओगे तो एक गलती नहीं करना है, अभी पूरा के पूरा पेज नहीं पढ़ना है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, ठीक है ना, उसमें ही तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना, बिंदास। और एक चीज देखो, मतलब इसके साथ साथ होता है कि जो क्लास 12 का बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड रहता है, मतलब क्या रहता है 12 में फॉर्मूला रहता है, मतलब जैसे कि इक्वेशन वाला, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत देख लेना है कि हर इक्वेशन को मतलब कोशिश करो कि अभी भी 1 से 1.5 महीना है, 1.5 महीना है, ठीक है। इस टाइम पे अभी इस टाइम में तुम क्या करो कि फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लो, प्लस फिजिक्स के लिए, ठीक है। और फिजिक्स के लिए जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके लिए तो 11-12 बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको क्लास 11 और 12 दोनों को ही तुमको पढ़ के आना है। और बीएससी नर्सिंग के लिए मैं बोलूंगा कि जस्ट क्लास 12 पढ़ के आओ तो बहुत है, मतलब क्लास 12 को पढ़ के आओ, ऐसा छोड़ के मत आओ, ठीक है। और मतलब क्लास चैप्टर की जो एंड में जो पार्ट है उसको करके आओ, उसको छोड़ना मत, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना।
अभी देखो केमिस्ट्री के बारे में भी बता देता हूँ मैं। तो केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि ऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक से आता है, ऑर्गेनिक, ओके। और इनऑर्गेनिक पार्ट थे क्यों, आई मीन इनऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो मैं बोलूंगा इसके लिए कि क्लास 11 थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए 11 का ऑर्गेनिक पार्ट देख लो, ओके, ऑर्गेनिक पार्ट देख लो। और क्लास 12 का जो जो पार्ट है, हर एक पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ लो। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हो सकता है कि हॉर्स का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको एक बार सॉल्व कर लो और देख लो, पढ़ के आ जाओ, ठीक है ना, तब हो जाएगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो आलिया यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब PYQ इसको कहा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके लिए मेरे वेबसाइट में तो सब कुछ अपलोडेड है, 4-5 साल का, नहीं तो 3-4 साल का वेबसाइट मतलब क्वेश्चन तो रहेगा, उसको डाउनलोड कर लो। कहाँ से डाउनलोड करोगे वो भी मैं दिखा देता हूँ, एक बार देख लो। इधर जाओगे, ये जो मतलब मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, इधर देखो पूरा के पूरा क्वेश्चन पेपर है, अबाउट ऑल थिंग्स मतलब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें तुम्हारा BSc नर्सिंग का भी क्वेश्चन है, देखो बीटेक का है, ये BSc नर्सिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा, बेसी नहीं, मतलब ज्यादा नहीं, 49 रुपीज, ओके। इसके साथ साथ ये वाला जो पार्ट है GK एंड इस्लामिक हिस्ट्री, हर एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो इसको भी ले लेना, ठीक है, ये वाला और BSc नर्सिंग वाला, ये दोनों को खरीद लेना। और इसको मैं बोल रहा हूँ कि सबके लिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ले सकते हो। और इसमें इस्लामिक हिस्ट्री का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा नहीं, देखो करीब 20-25 रुपये से तुमको मतलब 20 नंबर मिल जाएगा, तो इससे मतलब बड़ी क्या बात होती है, राइट। तो आई मीन ले लो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है, इसको ले लो। मतलब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बता दिया मैंने। और बायोलॉजी में क्या रहता है, देखो बायोलॉजी में मतलब कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं इसके लिए मैं एक चीज बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कि क्लास 12 तो पढ़ना ही है एकदम। इसके साथ साथ देखो PYQ जो मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें देखो कि कहाँ से पूछा जा रहा है ज्यादातर, ठीक है ना, तो उसको देखो। और बायोलॉजी के लिए 11-12 तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बोलूंगा कि ज्यादातर 12 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 12 को प्रिपेयर करके आओ, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, बिंदास, ओके। इसके साथ साथ मैं जो मतलब बोलूंगा कि देखो केमिस्ट्री का तो बोल दिया, मतलब बायोलॉजी का भी बोल दिया मैंने, कि थोड़ा बहुत करके आओ। देखो इधर देखो मतलब कि बेसिक क्वेश्चन तो है, उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व भी बहुत सारे क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें देखो बायोलॉजी का तो मतलब तुमको पता होना चाहिए, जैसा आंसर आता है ना पता होना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाता है, राइट। इसमें ज्यादा रहता है, देखो बायोलॉजी में कितने, देखो बायोलॉजी में ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। इसके साथ साथ 20 मार्क्स वाला जो है ना, वो भी तुमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसलिए मैंने बोला कि वो PDF तुम ले सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। यही होता है तुम्हारे लिए मतलब सिलेबस, तुम कर लोगे तो हो जाएगा। अभी देखो मैं बीटेक के बारे में बताऊंगा, ये देखो ये है बीटेक वाला, ठीक है। तो बीटेक में मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं सबके बारे में बता दो। देखो फिजिक्स का है 20 मार्क्स, ठीक है। तो फिजिक्स में देखो मतलब बेसिक क्वेश्चन है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी है, और इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी है, तो मैं तुमको थोड़ा बहुत करीब मैथ का भी दिखाऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में बोल देता हूँ कि देखो ये जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको देखो कि हाँ कौन सा चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसा नहीं बोलो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो एकदम अच्छी तरह से। अभी देखो मैं बता देता हूँ तुम्हारे लिए भाई लोग, बीटेक के लिए कुछ चीज बताऊंगा, अभी उसको ध्यान में रखते हुए अभी पढ़ाई करो, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा गारंटी, टेंशन लेने का नहीं भाई, देने का है, बिंदास बॉस एकदम, ठीक है ना। बीटेक और लैटरल एंट्री सबके लिए सेम ही होगा, तो इसीलिए मैं दोनों को ही लिख देता हूँ, ठीक है। लैटरल के लिए देखो इसमें 2-3 चीज तुमको अच्छी तरह से करना है एकदम, कि फिजिक्स में जहाँ मतलब जो PYQ है, बहुत लोगों ने आई थिंक PYQ तुम्हारे पास है, किसी के पास नहीं होगा तो प्लीज भाई अभी वेबसाइट से मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो और ले लो भाई, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और फायदे का होगा सच में। तो PIQ से देखो कि कहाँ से मतलब क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ठीक है, कहाँ से है, और उसी चैप्टर से मतलब क्वेश्चन आएगा, मतलब वही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ऐसा मान के चलो। और मतलब प्रिपरेशन करो, क्लास 12 भी पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्लास 12 भी पढ़ो, और छोड़ के मत आना भाई, मतलब करके आना है, ठीक है। आंसर मतलब जो भी हो लग रहा है कि आंसर हो सकता है उसको कर देना, ठीक है ना। और केमिस्ट्री का भी सेम, मतलब जो
करने तुम सबको, ठीक है। केमिस्ट्री का भी तुमको वही करना है, क्लास 12 को अच्छी तरह से पढ़ के आना है। और इसके साथ साथ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो मतलब एक बार ना मतलब पूरा के पूरा बुक को एक बार देख के आओगे तो लगेगा कि भाई सच में मेरे को कुछ पता है, नहीं तो कुछ मतलब पता नहीं होगा, ऐसा लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो देख के आना ही होगा। अभी देखो मैथ के बारे में बता देता हूँ। देखो मैथ के बारे में तुमको क्या करना है भाई, मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बीटेक के लिए, क्योंकि मैथ में ज्यादातर सवाल तो क्लास 12 से आता है और 11 से भी पूछा जाता है। लेकिन मैं बोलूंगा कि 12 ही कर लो, 11 थोड़ा बहुत फार्मूला को देख लेना तो आके तुम कर लोगे। और आंसर एकदम ना पता होना चाहिए, ऐसा ही मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत लंबा लंबा लेंदी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, लेंदी क्वेश्चन, लेकिन आंसर बहुत ही इजी रहता है, मतलब हो सकती है 0 वाला, नहीं तो 1 आएगा, ऐसा आंसर आता है। लेकिन समझ मतलब आना चाहिए कि भाई सच में कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसा होगा, ठीक है ना। ऐसे देखो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है, और ये तो देख के पता होना चाहिए, ऐसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में देखो मैं कुछ दिखा देता हूँ, तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। अभी देखो ये जो वैल्यू है ना, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, ये तुमको मतलब एक बार थोड़ा सा करके रुक जाओ, एकदम देख के पता होना चाहिए, ये आंसर देख के पता होना चाहिए, मतलब करने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये वाला भी एकदम फॉर्मूला से पूछा गया है, एकदम देख के पता होना चाहिए। और इस ये सब ना मतलब तुमको फॉर्मूला पूरा का पूरा क्लास 11 12 को पढ़ लोगे एक बार तो इजीली कर लोगे, लेकिन नहीं करोगे ना, एक बार नहीं करोगे एक बार भी तो समझ में नहीं आएगी। ये देखो डिफरेंशियल से आया है, ये भी डिफरेंशियल से आया है, ये सब कर लोगे भाई, एकदम कर लोगे, गारंटी, मतलब बहुत हार्ड नहीं रहता है। और ये वाला देखो, ये तो एकदम लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया, आंसर सबको पता होना चाहिए। और मतलब किसी को नहीं पता होगा तो कैलकुलेशन करोगे तब भी पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है, सच में पॉसिबल है यार, बहुत हार्ड नहीं रहता है। जैसे कि होता है ना कि ई टू द पावर एक फॉर्मूला रहता है, ई टू द पावर एक्स माइनस 1/x होगा तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना। ऐसे करके इसको मतलब तोड़ना पड़ेगा, इसको वैल्यू को भागोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर करके उसको अलग से करोगे तो कॉमन लोगे तब ऐसे आ जाएगा। और 2x मतलब एक्स स्क्वायर ऐसे आता है, मतलब करीब ऐसा आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब करके करना पड़ेगा। देखो ए समीकरण बीजगण गुणनफल मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ है, बी का वैल्यू देना पड़ेगा। देखो ए बीजद्वय गुणनफल मतलब हमको बेंगुली आता है, तो देखो इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो -3 है, मतलब c बाय ए कह सकते हो हम, मतलब b/2 करके, तो b/2 का वैल्यू दिया हुआ है इधर -3, तो पूछा कि b का वैल्यू कितना आएगा, अरे भाई ये तो एकदम इजी है कि 6 आएगा। ऐसे ही मतलब सवाल आता है, देखो कितना टाइम लगा, करीब 5 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोग को, बीटेक वालों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखो ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत 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 ज्यादा बेसिक, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, एकदम सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या आ रहा है। dy/dx को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, y आएगा। और मतलब ये तो बेसिक एकदम बार्नोली इक्वेशन बोला जाता है क्लास 12 का, ये क्लास 12 का वही से एक क्वेश्चन पूछा गया है एकदम, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखो बाकी जो क्वेश्चन है ना इधर, मतलब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। और मैं सोच रहा हूँ कि इतना दिन तो मेरे को लग रहा था कि मैं सॉल्व करूंगा, नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं बता दिया और हो पाए तो 1-2 दिन में सॉल्व कर पाया, तो मैथमेटिक्स का ये सब पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो ये वाला x⁴ से इसको कैसे सॉल्व करना होगा, एकदम मतलब बहुत लोगों ने कर लिया होगा, और नहीं किया हो तो मेरे को बताना कि सच में नहीं कर पा रहा हूँ, आप एक बार क्लास ले लो लाइव में तो अच्छा रहेगा, मैं ऐसा सोचूंगा, ठीक है ना। देखो ये वाला जो है ना, ऐसे तुमको करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए, पहले से पढ़ लोगे थोड़ा बहुत बुक से ना तो कर लोगे एकदम, ये तो 1-2 लाइन में ही आंसर आ जाते हैं ये सब, ये वाला, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये भी 1-2 लाइन में ही आंसर आ जाते हैं, लेकिन तुमको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये भी एकदम प्रोबेबिलिटी से मतलब है, तो कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं पहले बोल देता हूँ कि सबको मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ना जस्ट भाई थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ा बहुत क्लास 12 का 11 का फॉर्मूला देख लो मैथमेटिक्स का। इसमें मैथमेटिक्स है क्लास 12 की, मतलब ये जो मैथमेटिक्स पार्ट है ना, इसमें ही तुम लोग स्कोर कर लोगे, और 70 से 80 स्कोर कर लोगे तो CSC पक्का मिल जाएगा, CSC मिल जाएगा। और बीटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमको ना मतलब अच्छा खासा एक कोर्स मिलना है, ठीक है ना। बीटेक में क्या मिलना है कि हम लोग को बीटेक के लिए सब लोग ऐसा ही सोचता है कि बीटेक में मेरे को CSC मिल जाए, बस एक बार CSC मिल जाए तब तो भाई
10 लाख का पैकेज एकदम कंफर्म है, ठीक है ना। इसीलिए सब लोग ऐसा ही सोचता है। तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबको भाई कि अच्छी तरह से पढ़ो और इंशाल्लाह तो सी से तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ अलग से देखो करीब 300 के ऊपर सीट है पूरा के पूरा देखा जाए तो इसीलिए पढ़ोगे तो एकदम सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी पढ़ो और करीब मतलब मान के चलना कि मेरे को 50 से एकदम 80 के बीचों बीच लेके आना है, तब मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो ए वाला था मैं दिखा दिया पहले से ही कि ए वाला जो पार्ट है जीके के लिए, जीके और इस्लामिक मतलब 20 मार्क्स जो रहता है लास्ट में, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा पैसा नहीं लगता है भाई, 20 मार्क्स के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको खरीद लो और जाके पढ़ाई करो, मस्त है, लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसमें जो जो क्वेश्चन है ना मतलब 20 मार्क्स वाला सबको लिख लो, लिख के आंसर को बार बार रट लो भाई, सच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ और मैं मतलब कुछ बताऊंगा जैसे कि बीटेक में बता दिया, और इसके साथ साथ देखो और भी कुछ है मैं सबको बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत करके, ठीक है ना। इसमें देखो इस्लामिक का क्वेश्चन है और ये देखो अरबिक का है। तो अरबिक के लिए क्या होता है, जो लोग फाजिल का एग्जाम दे दिए हो, ठीक है, मतलब ये 2016 वाला है, ये है कितना, ये 2016 वाला, ठीक है। ये भी देख लो, ये है अरबिक का। जो लोग फाजिल होता है ना, क्लास 12 का एग्जाम होता है, वो दे दिए हो, अभी सोच रहे हो कि अरबिक नहीं तो इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज पढ़ना है, उसके लिए क्या क्या देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। तो PYQ अभी के अभी जाओ और वो साइट है मतलब डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन को चेक करो, पूरा के पूरा डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अच्छी तरह से पढ़ाई स्टार्ट करो और तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा भाई, कोई रोक नहीं सकता तुम लोग को, गारंटी रोक नहीं सकता, ठीक है ना। एकदम कर लोगे, मस्त कर लोगे, बिंदास, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखो और एक इम्पॉर्टेंट चीज रहता है कि मतलब करने जाओगे तो ऐसे तो मेरे को पूरा आंसर नहीं पता है, लेकिन प्रीवियस ईयर को कर लो तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और मतलब सच में बहुत ज्यादा सीट रहता है अरबिक इस्लामिक स्टडीज, इसमें ज्यादा क्वेश्चन मतलब सीट होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा सीट्स बहुत ज्यादा रहता है, सीट्स मतलब बहुत ज्यादा रहता है। तो पढ़ोगे तो जो भी मतलब करोगे ना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करो कि फाजिल का जो एग्जाम दिए हो सब लोग, तो फाजिल का एग्जाम का क्लास 12 का वही पढ़ लो सिलेबस, उससे ही तुम्हारा मतलब आ जाएगा पूरा के पूरा, एकदम वही पढ़ लो तो तुम्हारा वही से ही मतलब कर लोगे सब कुछ, ठीक है। देखो मैं ये सब बता दिया, बीटेक हो गया, ये भी मैंने बता दिया। अभी देखो इसको ये क्या है, ये है बीएड का। देखो बीएड के लिए क्या होता है, बीएड के लिए ज्यादातर रीजनिंग रहता है, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उधर से डाउनलोड करने के लिए बोलूंगा, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ। देखो एक बार जो बीएड का स्टूडेंट हो, जो बीएड के लिए मतलब पढ़ना चाहते हो, बाहर से लोग आते हो, ठीक है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि सीट मतलब 100 सीट रहता है। इंटरनल के लिए करीब मतलब 80 सीट तो इंटरनल के लिए है, ठीक है, मतलब बहुत कम सीट रहते हैं बाहर लोगों के लिए। तो 10-20 ही सीट होता है, 10 से 20 ही सीट होता है बाहर के लिए, ठीक है। इसमें क्या करो, देखो तुम्हारे लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आता है। रीजनिंग मोस्ट आता है, मान के चलो रीजनिंग और मैथ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो रीजनिंग और मैथ कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ऐसा मान के चलो। और जीके तो बहुत क्वेश्चन आता है, जीके और मतलब ऐसे करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। और मतलब ज्यादातर तो जीके आता है और रीजनिंग आता है। तो ये सब कर लोगे तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आगे देख लो, जाओ साइट से जाके डाउनलोड करो और उसको करो तो तुम्हारा हो जाएगा बस, मतलब टेंशन नहीं, ठीक है ना। बीएड भी बता दिया। अभी देखो ये क्या आ रहा है, हाँ ये थियोलॉजी का, देखो ये थियोलॉजी का है। तो थियोलॉजी का मतलब आई थिंक 2017 का है ये, देखो। और इसमें मतलब किसने दिया था एग्जाम वो भी लिखा हुआ है। देखो इसमें जो थियोलॉजी का है, इसमें देखो मेरे को नहीं पता है, मतलब पूरा के पूरा आंसर नहीं पता है, लेकिन ये सब तुम लोग करोगे तो तुमको तो पता होगा ना, तुम कर लोगे। इसीलिए इस्लामिक थियोलॉजी के लिए मैं बताऊंगा कि क्लास 12 से क्वेश्चन आता है फाजिल के बाद ही, मतलब ये तो मेरे को नहीं पढ़ना आता है, एकदम नहीं पढ़ना आता है, लेकिन तुम पढ़ोगे तो कर लोगे। प्रीवियस ईयर सॉल्व करो और तब तुम आके एग्जाम दो, तब मेरे को बताना कि भैया आपने बताया था कि प्रीवियस ईयर करने से बहुत हेल्प रहेगा, तो मैंने किया था और क्लास 12 का भी मैंने बुक्स पढ़ के आया था तो मेरा सिलेक्शन हो गया। बाद में मेरे को आके ना बोलना कि दादा मेरा हो गया, तो माशाल्लाह आपके लिए मैं बहुत दुआ करूंगा और आपको मैं कुछ गिफ्ट दे पाया तो माशाल्लाह, नहीं तो मैं और एक काम करूंगा अच्छा वाला गिफ्ट, कि दूसरे बंदे को कुछ शार्ट्स वगैरह खरीद के मैं दान दे दूंगा।
वो मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा, ठीक है ना। ये सब करूंगा, मेरे लिए भी खरीद सकते हो, नहीं तो दूसरों के लिए भी खरीद सकते हो। मेरे लिए मत खरीदो, जो रास्ते में पड़े रहता है वो लोगों के लिए खरीदो, उनको दे दो, मैं बहुत खुश होऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तो मतलब ठिकाना नहीं कि कितना खुश होंगे ऐसा कर पाओगे तो, ठीक है ना। बीबीएमबीए के लिए देखो, बीबीएमबीए के लिए तो मैं अभी तो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, और जिन लोग को अभी भी लग रहा है कि 1 महीना है मैं पढ़ूंगा, तो मेरे को आई मीन लिख सकते हो कमेंट पे, ठीक है ना। और मेरा एक नंबर भी है, तो नंबर अभी देखो बीएड बीबीएमबीए के लिए कुछ बता देता हूँ। देखो बीबीएमबीए के लिए, बीबीए एमबीए के लिए, ठीक है ना, बीबीए एमबीए के लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है कि एकदम मैथ्स मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। मैथ उसके साथ साथ होता है डीआई, डेटा इंटरप्रेशन, होता है कि एक तो ग्राफ मिल गया ऐसा ऐसा है, ठीक है ना, इसमें 20% है, 30% है, और इसमें 10% है, तो अभी बताओ कि इसमें कितना था, नहीं तो इसके रिलेशनशिप क्या है, ऐसे करके होता है ना। और ग्राफ में रहता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन, बार ग्राफ का, तो ऐसा डीएवी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो 40 मार्क्स इधर से ही आता है, मैथ और डीआई मतलब रीजनिंग ऐसे मिला के। उसके साथ साथ इंग्लिश भी आता है, तो मतलब पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को देखने के बाद, पीवाईक्यू देखने के बाद पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से, तब जाके सिलेक्शन होगा। इसमें देखो 60 सीट रहता है, आलिया के लिए 60 सीट रहता है, और यही होता है सिलेबस। और जीके वाला तो जीके तो सबको पढ़ना ही पड़ेगा एकदम, और जो वेबसाइट में है ना जीके के लिए, वो जीके के सबके लिए है, हर एक सब्जेक्ट के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हो सबके लिए है, ठीक है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा। मेरा तो हालत बहुत बुरा हो रहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं टाइम लेंथ कितना हो गया। और देखो ये ईमेल है मेरा, तो ईमेल में मेरे को मैसेज कर सकते हो कि दादा ये सब के बारे में बता दो कि क्या क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में मेरे को इस ईमेल पे मेरे को पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो ईमेल में, ठीक है। अवार्ड में रैंक करना है तो मतलब तब तो पढ़ना है भाई, सच में पढ़ना है, नहीं तो कैसे करोगे ना, तो सच में पढ़ना है। और मेरा नाम है आमिर सोहेल बिल्टू, सब लोग को पता होगा, और मैं तो नौचब बिंदास बास हूँ। इस्लामिक स्टडीज़ के लिए मैं बताते, देखो इस्लामिक स्टडीज़ के लिए भी तुमको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। जो जो क्वेश्चन है देखो 50 मार्क्स का, फुल मार्क्स का 2018 में तो 50 मार्क्स का था, अभी 100 मार्क्स का हो चुका है। तो ये जो क्वेश्चन देखो कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आई थिंक तो मैं तो मतलब जिनको मेरे को जितना पता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो एकदम क्लास 12 से ही आता है, तो मतलब फाजिल का एग्जाम होने के बाद ही वही से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कर लोगे सिलेबस मतलब पूरा के पूरा सिलेबस, तो तुम्हारा हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है तुमको, ठीक है ना, एकदम रोक नहीं सकता है। और इसके साथ साथ और कुछ है, मैं ये भी दिख देता हूँ। ये क्या है, आई थिंक ये थियोलॉजी वाला है, देखो ये थियोलॉजी है, मैंने तो थियोलॉजी बता दिया, आई थिंक थियोलॉजी बता दिया, ठीक है ना। तो यही है, और कुछ के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बहुत सारे कुछ है, सबके लिए मैं और कुछ बताऊंगा, उसके बाद मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा, ठीक है। देखो पहले मैं बता दिया कि अभी पूरा के पूरा एक बार मतलब बोल देता हूँ, देखो मेरा एकदम पसीना छूट रहा है। 8 तारीख से फॉर्म फिलअप आ जाएगा, 8/5/2023 से फॉर्म फिलअप आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, मेरा जो वीडियो आएगा ट्यूटोरियल वीडियो आएगा, उसको देखने के बाद ही फॉर्म फिलअप करना है, पहले नहीं करना है भाई, नहीं तो गलत कर दोगे तो बाद में मेरे को बताना मत, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद जो मैंने बताया कि कहाँ से क्या पढ़ना है, पीआईक्यू देखना है, पीआईक्यू के साथ साथ सब कुछ मतलब अच्छी तरह से स्टडी करना है, क्लास 12 को अच्छी तरह से पढ़ना है। लेकिन अभी मैंने इस वीडियो में देखो पीजी के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन पीजी का भी फॉर्म फिलअप हो सकता है कि एक साथ आएगा, नहीं तो अलग से आएगा। लेकिन पीजी के लिए क्या करना है, पीजी के लिए जो यूजी का सिलेबस रहता है वही सिलेबस होता है, वो सब पढ़ के आना है, तब तुम्हारा हो जाएगा। और पीजी के लिए भी सेम सीट्स वगैरह रहता है, तो पीजी के लिए क्या करना है, यूजी पढ़ना है, मतलब यूजी के लिए 12 पढ़ना है और पीजी के लिए यूजी पढ़ना है। लेकिन पीजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि पीओआईक्यू देखने के बाद ही तुमको समझ में आता है कि सच में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो तुम लोग पीजी के लिए क्या करो कि पीओआईक्यू पहले डाउनलोड करो और देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है 2022 का क्वेश्चन होगा तो माशाल्लाह, क्योंकि देखो मतलब पहले 2018 में तो क्या था कि क्वेश्चन 50 मार्क्स का था, अभी कितना हो गया, ये बढ़ के ये 100 मार्क्स हो गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखने के बाद ही पढ़ना स्टार्ट करना। और कुछ मतलब डाउट रहा और जो मेरे को लगता है कि बीबीएमबीए में पढ़ रहे हो और पढ़ना चाहते हो, तो मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इस नंबर पे सब लोग मत करो, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं अभी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो चाहो तो तुम लोग मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जो जस्ट बीबीएमबीए के लिए, बीबीएमबी के लिए और बीटेक मतलब बीटेक नहीं बीएड के लिए, ये दोनों लोग कर सकते हो और मैं हेल्प करूंगा जितना हो पाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ मतलब इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच सबको, बहुत 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 धन्यवाद।
थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और इसको सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद लिख देना कि मैंने सब्सक्राइब कर दिया, और कहाँ से हो वो भी इधर बता देना, तो मैं तुम्हारे कमेंट को पिन भी करूंगा और ऊपर के ऊपर शो करेगा कमेंट, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा लेंथी वीडियो हो गया आई थिंक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये लास्ट सजेशन है तुम सबके लिए। और इसके साथ साथ तो वीडियो तो आएगा अलग अलग करके, और मतलब अलग अलग से, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए, और क्या क्या करना है क्या नहीं करना है सबके बारे में अलग अलग से वीडियो आएगा। और जादवपुर के लिए, कलकत्ता के सबके लिए, तो टेंशन मतलब भाई आ जाएगा, ठीक है ना। बंगाली हिंदी सब में मतलब मिक्स करके आएगा, तो माशाल्लाह कोई टेंशन नहीं आएगा, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ही था वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, और नहीं अच्छा लगा तो प्लीज मेरे को बता देना कि सच में क्या नहीं अच्छा नहीं लगा। और ये देखो, ये तो सब कुछ मैंने इधर लिख दिया है, और किसी को लगता है कि ये वाला मेरे को चाहिए, मतलब ऐसे क्या लिखे थे आप ऐसा, मतलब तुम लोग को लगता है कि मेरे को जानना है, तो मेरे को बोल सकते हो, मैं इसको अलग से फोटो वगैरह डाल दूंगा कम्युनिटी टैब पे, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो इतना ही था वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और नहीं अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज बंद कर बताना। और बाय, टिकट, लव यू ऑल, टाटा बाय। लेकिन पहले बाय करने से पहले आप भी जाओ और इसको खरीद लो भाई, अभी का भी खरीद लो, ठीक है। बाय, टाटा।